کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ایسی ریاستیں جہاں ڈائریکٹر جنرل پولیس کے تقرر کے سلسلے میں علیحدہ قانون موجود ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کریں گے، جبکہ دیگر ریاستوں کو سپریم کورٹ کی جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جے باگچی اور جسٹس وپل بنچولی پر مشتمل بینچ نے بہار، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو ختم کر دیا، کیونکہ تینوں ریاستوں میں ڈائریکٹر جنرل پولیس کے تقرر کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن کو تجاویز روانہ کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا موقف واضح ہے کہ ایسی ریاستیں جہاں قانون سازی کی گئی ہے وہاں پر اپنے قانون کے مطابق عمل کیا جائے، جبکہ جن ریاستوں میں علیحدہ قانون موجود نہیں وہاں ڈی جی پی کے تقرر، سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز پر عمل کیا جائے۔ جھارکھنڈ اور اتر پردیش میں ڈی جی پی کے تقرر کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں تلنگانہ میں ایل پی جی کی طلب اور سربراہی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ریاست کے 1,29,00,000 صارفین کو بلا وقفہ ایل پی جی سلنڈرز کی سربراہی کا تیقن دیا۔ چیف سیکریٹری نے آئل کمپنیوں اور سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی بحران کے تلنگانہ پر اثرات کا جائزہ لیا۔ رام کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے چوکسی اختیار کریں اور ریاست بھر میں ایل پی جی کی بروقت سربراہی کو یقینی بنائیں۔ چیف سیکریٹری نے شہری اور دیہی علاقوں میں ایل پی جی سربراہی کا جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی نے دعویٰ کیا کہ آئندہ 3 برسوں میں تمام مستحق خاندانوں کو اندرما ہاؤسنگ کے تحت مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ہر علاقے میں ترقی اور فلاح و بہبود کی اسکیمات پر عمل آوری میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت کی تشکیل کو 2 سال 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتخابی وعدوں کی تکمیل کے علاوہ کئی نئی فلاحی اسکیمات کو متعارف کیا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر کے ذریعے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جا رہا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ ریاست میں جملہ 4,50,000 اندرما مکانات کی تعمیر کا منصوبہ حکومت نے مستحق خاندانوں میں راشن کارڈز کی اجرائی عمل میں لائی اور باریک چاول مفت سربراہ کیا جا رہا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کالیشورم پروجیکٹ میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات سے متعلق رپورٹ پر 8 اپریل کو فیصلہ سنائے گا۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین پر مشتمل بینچ نے سابق چیف منسٹر کے سی آر، سابق وزیر ہریش راؤ، سابق چیف سیکریٹری ایس کے جوشی اور آئی ایس عہدیدار سمیتا سبریوال کی درخواستوں کی سماعت مکمل کی۔ درخواست گزاروں نے پی سی گھوش کمیشن رپورٹ کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزاروں کو راحت میں حکومت کو ہدایت دی تھی کہ قطعی فیصلے تک رپورٹ کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ وزیر آبپاشی این اتم کمار ریڈی نے عثمانیہ یونیورسٹی کو تلنگانہ کا فخر قرار دیا اور یونیورسٹی کے عہدیداروں پر زور دیا کہ اس یونیورسٹی کو ایک سرکردہ عالمی معیار کے تعلیمی مرکز میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے یونیورسٹی میں خالی جائیدادوں کو پور کرنے کے مسئلے کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے رجوع کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ حیدرآباد کمشنریٹ میں سول ڈسپیوٹس والنٹیئر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد۔ رینج ڈی آئی جی یو نرسمہا ریڈی کی شرکت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کی ہدایت کے مطابق حیدرآباد کمشنریٹ میں سول ڈسپیوٹس کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے مقصد سے والنٹیئر ٹریننگ پروگرام منعقد ہوا۔ یہ پروگرام رینج ڈی آئی جی یو نرسمہا ریڈی کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبوں کے ماہرین اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران شرکاء کو بتایا گیا کہ شہری علاقوں میں پیدا ہونے والے سول تنازعات کو عدالتوں تک پہنچنے سے پہلے بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے حل کرنا کس قدر اہم۔ اس مقصد کے تحت رضاکاروں کو خصوصی تربیت دی جا رہی۔
हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 1.743 किलोग्राम खुश्क गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पुलिस TJ राज को खुफिया इत्तला मिली कि अत्तापुर के करीब पिल्लर नंबर 254 के पास 2 मुश्तबा अफराद गांजा फरोख्त कर रहे। इत्तला मिलते ही उन्होंने आला अफसरान को आगाह किया और 5 गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू की। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3:40 पर 2 अफराद की हरकत मुश्तबा नजर आने पर उन्हें रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान एक सुर्ख और सफेद रंग के बैग से भूरे रंग के पैकेट में बंद 1.743 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ, जिससे तेज बू आ रही थी। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त शेख शोएब उर्फ चेतन उर्फ शोएब 22 साल पेशा ट्रक ड्राइवर साकिन अकोला महाराष्ट्र और मोहम्मद नदीम 19 साल पेशा डेंटिंग व पेंटिंग वर्कर साकिन अकोला महाराष्ट्र के तौर पर की गई। सदाशिव पेट मंडल के वेंकटापुर गांव में शहद की मक्खियों ने 15 देहातियों पर हमला कर दिया। बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के सदाशिव पेट मंडल के वेंकटापुरम गांव में एक सरकारी स्कूल के करीब बरगद के पेड़ पर शहद की मक्खियों ने अचानक स्कूल के तलबा पर हमला कर दिया। उन्हें फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उनमें स्कूल अटेंडेंट के तौर पर काम करने वाले एक शख्स पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और उसकी हालत संगीन बताई गई और उसे संगारेड्डी के बालाजी अस्पताल ले जाया गया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर गैस की कमी के बारे में गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले मुस्तकिल में वाक़े विमल गैस एजेंसी का जिले SP अखिल महाजन ने अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने आदिलाबाद DSP LG1 रेड्डी के हमरा गैस सिलेंडरों के स्टॉक, ऑनलाइन बुकिंग और दीगर इंतजामात का जायजा लिया और एजेंसी इंतजामिया को जरूरी हिदायत भी जारी की। पुलिस का गैर कानूनी मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट बनाने वाले यूनिटों पर छापा, 2 गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर स्टॉक जब्त। मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर जोन पुलिस ने शास्त्रीपुरम और ओडंगड्डा में गैर सेहत बख्श हालात में मिलावटशुदा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने वाले गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापे मारे और इस दौरान अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों को कम मियार के खाम माल में नमक मिलाकर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल और ज़ैंथम गम पाउडर को मोटाई बढ़ाने और रंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिससे सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फिजाई हादसे में साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर रियासती शोक का ऐलान करने वाली मोदी हुकूमत को अब ये बताना चाहिए कि वो हमले में मारे जाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर खामोश क्यों है। कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के आईनी सरबराह आयतुल्ला खामेनेई को अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। वजीर आजम मोदी खामोश हैं, वजीर खारिजा S जयशंकर खामोश हैं। पार्लियामेंट में अभी तक ताजियत की तहरीक भी नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की बजा तौर पर मजम्मत की, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी। ये भी याद रहे कि ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है, जिसकी सदारत इस साल हिंदुस्तान के पास है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान के खिलाफ हमला गलत था, लेकिन ईरान ने इन पड़ोसी ममालिक पर हमला करके भी गलत किया जो जंग में शामिल नहीं है। शशि थरूर ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलना दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों और इसके नतीजे ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल संगीन। उन्होंने कहा कि इन सब के दरमियान हिंदुस्तान की खामोशी भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के हमलों को उसूली तौर पर गलत करार देते हुए कहा कि अपने दिफा के मामले को जवाज नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब बातचीत चल रही थी और ईरान रजामंदी के लिए तैयार था, तो फिर अपने दिफा का सवाल कहां से आता है। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नोटिस दी है। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 अरकान ने नोटिस पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वालों में इंडिया ब्लॉक के सभी जमातों के अरकान शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ज्ञानेश कुमार के मौक़िफ़े की तायद की है, हालांकि वो अब ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही। बाज़ आज़ाद अरकान पार्लियामेंट ने भी नोटिस पर दस्तखत किए और कई दीगर ने कहा है कि वो भी इस पहल का हिस्सा बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
हटाने के लिए पहली मर्तबा ऐसी नोटिस दी गई है। नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर 7 इल्जामात लगाए गए। एक इल्जाम जानिबदारी बरतने का, अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कई मर्तबा बरसर इख्तिदार बीजेपी की मदद की है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान कम अज कम 675 तेंदुओं की मौत वाक़ई हुई है। ये मालूमात रियासती महकमे जंगलात से मालूमात के हक़ 2005 RTI के तहत हासिल करदा आदाद व शुमार में सामने आई। यह आदाद व शुमार जनवरी 2021 से फरवरी 2026 के अवाइल आखिर तक के अरसे पर मुश्तमिल। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40% अमवात हादसात के सबब, इनमें 99 तेंदुए सड़क हादसात में हलाक, जबकि 91 तेंदुए खुले कुओं या पानी के टैंकों में गिरने से हाथ जान से धो बैठे। सबसे ज्यादा 320 अमवात तकरीबन 47% कुदरती वजूहात के बाइस हुई हैं। इसके अलावा 30 तेंदुए गैर कानूनी शिकार का शिकार बने, जिनमें बिजली का करंट लगना और फंदे लगाकर शिकार करना शामिल। महकमे जंगलात के मुताबिक नासिक और पन्ने के फॉरेस्ट सर्कल्स में तेंदुओं की मौत की सबसे ज्यादा तादाद सामने आई, जो इन इलाकों में तेजी से बढ़ती शहरी तौसी और ज़रूरी सरगर्मियों के बाइस इस नौ को दरपेश बढ़ते खतरात की निशानदही करती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।